Another day, another game. Match number 5 of Indian T20 League. This time, Rohit Sharma led Mumbai will take on Dinesh Karthik's Kolkata, and it will happen at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi. Hello and a warm welcome, everybody. My name is Vedant, and today I have been joined in with Yuvraj Zua to discuss the pre-show, and we will definitely be joined in with cricket expert Atul Wassan. So, hi Atul, hi Yuvraj, how are you? Good of you to assume me as Atul Wassan Vedant. But anyway, I think you uh, would definitely want to be in that category one day. yeah, definitely. Apart from that, Vedant, now we have moved from Sharjah to Sheikh Zayed Stadium. Right. Another big difference to watch specifically because those boundaries were so short. Now we'll again move to long boundaries. ये यूएई भी अलग ही खेल खेल रहा है जिसमें एक एक तो 50-55 की बाउंड्री दिखाते हैं हमें, दूसरे में 77-80 मीटर्स तक की बाउंड्री है. तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट काफी पड़ता है एंड वी हैव सीन दैट डायरेक्टली इन द स्कोर्स. It has reflected in the scores so far from 160 to 216. It's a big difference, but yeah, Kolkata stepping out for the first time, and let's see how they turn up today. Can 160 be turned into 180? That's the question, because this time we will be seeing Owen Morgan, Andre Russell, some big hitters in Kolkata's side. And if they bat first, who knows? You might see even 160 turning into 180. Yeah, definitely, Vedant. That's I think you put it precisely because they have big hitters in the form of Owen Morgan, Andre Russell. The other side there is Hardik Pandya, Kyron Pollard. Krunal Pandya can hit them big, and we can't forget Rohit Sharma, even Quinton de Kock. So everyone uh, can hit big sixes, can clear the boundary at will. So it will be interesting to see. Now the point is how will the pitch play? Very important to see. नहीं, बहुत अच्छी बात करी आपने पिच की। और पिच के मामले में जब भी बात आती है तो मुझे अतुल पाजी ध्यान आ जाते हैं, क्योंकि वो एक चीज जरूर कहते हैं कि शेख जायद स्टेडियम के अंदर लेफ्ट और राइट साइड के अंदर स्टैंड्स नहीं है युवराज, और स्टैंड्स नहीं होने से हवाएं जो चलती है उसमें स्विंग काफी बेहतर होती है। और उस वजह से मैं चाहूंगा कि थोड़े यंग सितारे, थोड़े इंडिया के सितारे, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी में से किसी एक को तो जरूर देखना चाहूंगा मैं आज। स्विंग कंडीशंस की आपने बात की, जो हवा चलती है कोई भी बैरियर नहीं है साइड में, तो डेफिनेटली हवा के लिए कोई ब्लॉकेड नहीं है, तो वो सीधी तेज तरार चली जाती है. और इन कंडीशंस में लेट मी टेल यू वेदांत, ट्रेंट बोल्ट will be the king if he can exploit those swinging conditions. The way he swings the ball, हालांकि एक ही तरफ लेके जाते हैं, दूसरी तरफ उन्हें जब लेके जानी होती है तो क्रॉस सीम पकड़ लेते हैं थोड़ी. बट इफ ही गेट, रोहित शर्मा के भी नेमेसिस रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, काफी गेम्स में हमने देखा है, वनडे क्रिकेट में देखा है. और डेफिनेटली सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट तो मुंबई में ही है. तो देखते हैं अब कि ट्रेंट बोल्ट स्विंगिंग कंडीशंस कैसे एक्सप्लॉइट कर पाते हैं. इंपॉर्टेंट ये होगा कि कप्तान किस तरफ से किस एंड से ऑपरेट करवाते हैं. और दूसरे जो पेसर हैं, जसप्रीत बुमराह, ही डजंट नीड एनी कंडीशंस. राइट। He just wants the ball in his hand and he can do the job for you at any point of time in the game. I think what you said was more related to how if he can trouble somebody like Rohit Sharma, he can definitely trouble the new guns like Shubman Gill. That's for sure. I think that's what you meant, Yuvraj. And now let's look at the playing 11 of the last time when Mumbai actually stepped onto field. They opened with Rohit Sharma and Quinton de Kock. On number 3, they ended up with Surya Kumar Yadav. वो चाहेंगे थोड़ा सा उनका बैट चले, पिछले मैच के अंदर कुछ इतना खास बल्ला चल नहीं पाया, तो इस गेम में जरूर चाहेंगे कि जितना बड़ा नाम है, लास्ट ईयर मुंबई के लिए काफी अच्छा किया था इनने, तो चाहेंगे कि इस साल काफी अच्छा परफॉर्म करें और वो एक मोमेंटम और कंसिस्टेंसी दिखाएं. चौथे नंबर पे एक ऐसा खिलाड़ी जिसको जने एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, पर मुंबई कैंप उनके साथ गया, सौरभ तिवारी उनका नाम है. कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, इन तीनों का आप अपनी प्लेइंग 11 से हटा ही नहीं सकते. एंड दैट्स हाउ good they are. And when we talk about their bowling, James Pattinson, Rahul Chahar, Trent Bolt, and Jasprit Bumrah, I don't think any changes will be there in the side today. Just 12 minutes to the toss. What do you think? Again, that's what I was going to ask you actually, Vedant. Do you see any changes in this side? Because I don't personally. मुझे नहीं लग रहा कि they will have any changes. Only scope there is for change is in the middle order. बट आई थिंक क्योंकि पिछले मैच में परफॉर्मेंस सौरभ तिवारी की अच्छी रही थी,
सूर्य कुमार यादव काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, a stalwart of Indian domestic cricket. I don't think you would want to keep him out. A really good fielder. अगर आप उन्हें लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे खड़ा करते हैं, मिड विकेट पे खड़ा करते हैं, you can vouch on him to pouch catches. So definitely I think they will go in with the same 11. What do you think? Can you expect any changes from them? Well, I don't think so. I think Mumbai is a side जो एक ही स्क्वाड के साथ जाना प्रेफर करती है, प्लेइंग 11 का जाना प्रेफर करती है. कोई इंजरी अपडेट आई नहीं है युवराज, और अगर इंजरी कंसर्न्स नहीं है तो मेरे को अभी लग नहीं रहा इस चेंज पे कोई टैक्टिकल चेंज होने वाला है. सेम वेन्यू पे खेला जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई वैसे कोई चेंजेस करने चाहोगे. अभी टूर्नामेंट चालू ही हुआ है, थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहेंगे जितने भी प्लेयर्स को मौका दिया है उनको. और आपने जैसे कहा कि मिडिल ऑर्डर में चेंजेस हो सकते थे अगर परफॉर्म नहीं किया होता, तो परफॉर्म करा है. सूर्य कुमार यादव के साथ आपको जाना पड़ेगा. पिछले साल उनने काफी बेहतर परफॉर्म किया था मुंबई के लिए. नंबर 3 पे मुझे लगता है उनके साथ ही स्टिक रहेंगे. अब क्योंकि सौरभ तिवारी ने लास्ट मैच में 42 उजड़ दिए, तो आप उनको टीम से हटा नहीं सकते. फिर पंड्या ब्रदर्स आ जाते हैं और पोलार्ड आ जाते हैं, तो वो तो एक ऐसा 5 खिलाड़ी ऐसे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं हिल सकता. ओपनर्स को आप वैसे नहीं हिला सकते. तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि आज मुंबई कोई चेंज करने वाला है. जी, दूसरी साइड अगर हम देखें, कोलकाता की बात करें, जो एक टॉकिंग पॉइंट रहेगा कोलकाता की तरफ, वो ये रहेगा उनकी जो पेस बैटरी है वेदांत. just have a look at the names: Pat Cummins, Lockie Ferguson, Shivam Mavi, and of course Kamlesh Nagarkoti. These are the kind of bowlers that they have in their pace department. तो कोई कमी नहीं है. जो स्पीड गन पे जितना भी आप बोलेंगे उतना रजिस्टर कर सकते हैं. क्या लगता है आपको, कौन से पेसर्स इस मैच में आने वाले हैं? ये हमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया. पैट कमिंस तो जरूर दिखेंगे, बहुत महंगे बिके हैं, उनको जरूर खिलाएगी टीम. मेरे को लगता है शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी में से किसी एक के साथ जाएगी. पता नहीं कैसे रहने वाला है इनका गेम, क्योंकि स्टार्ट है थोड़ा, वो जो प्रेशर है पहले गेम का वो जरूर रहेगा. शिवम मावी खेल चुके हैं, पर कमलेश नागरकोटी के लिए थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है. प्रसिद्ध कृष्णा भी है इनकी साइड के अंदर. तो ओवरऑल जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है काफी अच्छा लग रहा है इनका. कुलदीप यादव को आप भूल नहीं सकते. तो मेरे हिसाब से एक ओवरऑल अच्छी टीम बन सकती है. लास्ट ईयर 2019 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था कुलदीप यादव ने, और वो एक नेम टैग है वो अपने नाम से हटाना चाहेंगे कि मैं एक अच्छा बॉलर हूं. T20 क्रिकेट के अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको पता हो तो उन्होंने एक हैट्रिक भी ली है वनडे क्रिकेट के अंदर, तो उनको पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कैसे परफॉर्म करा जाता है. तो कुलदीप यादव जरूर रहेंगे उस स्क्वाड के अंदर. फिर आपके पास द्रे रस, मुझे लगता नहीं आज बॉलिंग डालेंगे, मुझे लगता है सिर्फ उनसे बैटिंग ही कराएंगे, और बैटिंग उनको 5 या फिर 6 से नीचे नहीं कराने चाहिए. पैट कमिंस उनके बाद आने चाहिए नंबर 7 पे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5 या 6 में से किसी पे खेलेंगे. और मैं आपको सही बताऊं तो मैं लिटरली चाह रहा हूँ कि आज ओवेन मॉर्गन खेलें. ओवेन मॉर्गन पे बहुत निगाहें रहेंगी. आईपीएल के अंदर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा नाम है वो. अब वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया, अभी T20 के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करा. जितने भी T20 खेले, 6 तो ऐसे मारते हैं जैसे फ्लिक ही ले रहे हो, अभी 1 रन ले रहे हो साइड के अंदर. तो ओवरऑल मुझे लगता है एक साइड बहुत बैलेंस लग रही है युवराज, एंड इट्स अ साइड टू वॉच आउट फॉर. Vedant, if I ask you one question, if you had to choose 4 overseas players from Kolkata that will feature in the side, what would those names be? स्टार्टिंग में जाऊंगा कि सुनील नरीन करें. सुनील नरीन टॉप ऑफ द ऑर्डर. मुझे लगता है कि शुभमन गिल का तो ओपन करेंगे, तो एक ओवरसीज हो गए मेरे सुनील नरीन. फिर जैसे कि मैंने अभी नाम लिया ओवेन मॉर्गन, मैं चाहता हूं कि मिडिल ओवर्स में खेलें. मैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नंबर 3 या नंबर 4 पे आएंगे. नंबर 3 पे अगर नितिश राणा के हाथ जाते हैं तो नंबर 4 पे वो जरूर आएंगे. और उसके बाद ग्रे रस को आप हटा ही नहीं सकते. आंद्रे रसल को अगर इंजरी नहीं है कोई, मैं आंद्रे रसल के साथ जरूर जाना चाहूंगा. और चौथे हैं पैट कमिंस. तो ये एक ऐसे 4 खिलाड़ी हैं युवराज, जो इसी गेम के लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है आने वाले काफी गेम्स के लिए यही 4 ओवरसीज होने वाले हैं कोलकाता के लिए. अगर मैं तो आपसे जी जी आपका क्वेश्चन पहले आप बताएं. तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में कॉम्बिनेशन बन सकता है पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी, सुनील नारायण एंड कुलदीप यादव. आई थिंक दीज a very packed bowling lineup according to me, and a big advantage for them going into this game. Yes, Vedant, getting back to you. Absolutely, no doubts about it. And how about if I ask you, since we have already mentioned that 4 overseas will be the same for Mumbai, which is that overseas player you think will be performing out of the box today? The uh, out
Gee, first of all, I think all these overseas players they have, whether it's Quinton de Kock, Kyron Pollard, apart from that Trent Bolt, all of them, they've been brilliant throughout the years. But I'll have my eyes on Quinton de Kock today because when he bats in the power play, he's so fluent, he's so beautiful to watch, and with every left-hander comes the elegance. The elegance is just brilliant. He's a very stylish batsman. I'll have my eyes on Quinton de Kock today. Well, one interesting point, Yuvraj. First four games, all the teams who have won the toss till now, they have elected to bowl. What can we expect in this game? Just 6 minutes to toss. I think we can expect the same. We saw this trend in the last tournament also. In Right. 2019 we also saw this trend. मेरे हिसाब से ये एक ट्रेंड बन चुका है T20 क्रिकेट में क्योंकि चेस करना टीम ज्यादा पसंद कर रही हैं. देखिए क्या होता है 20 ओवर की गेम में पिच ज्यादा चेंज नहीं होती. तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक टारगेट हो, सेट टारगेट हो, ताकि आप समझ पाएं कैसे खेलना है. फर्स्ट इनिंग्स में तो देखिए क्या होता है कि आप ऐसे खेलते हैं कि आपको टारगेट पता नहीं होता है कि क्या एम करना चाहिए आपको, स्पेशली ऐसी पिचेस पे जहां अभी तक आप खेले नहीं हो और आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो. अगर Right. आप जैसे अगर आप देखें वानखेड़े में अगर मैच होता, Mumbai would have definitely been batting first because they know what their target should be, how much they should be aiming for. They should be aiming for 230 to 40 at Wankhede at least. But here, you actually don't know how the pitch will play out. Of course, we've already seen a match here, Sheikh Zayed Stadium में. फिर भी UAE conditions और Indian conditions में Vedant, let me tell you, there's a whole lot of difference. So Right. bowling first would be a vital choice, I think. Well, absolutely. I think bowling first will be the vital choice, and that has been the case in the tournament so far. Yuvraj, next question towards you. Pat Cummins, somebody who has been coming with a big brand tag on his name. Well, we have already talked in Match Day Live about कि क्या उनका ब्रांड टैग का हो सकता है, पर उनके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियंस एक ऐसे हैं जो कुछ अलग ही निकाल के लेकर आते हैं और वो ब्रांड टैग उन पे चलता नहीं है, क्योंकि आप शॉन मार्श उठा के देख लें कितने बेहतर परफॉर्म किया था उनने पहले आईपीएल के अंदर, और लगातार माइक हसी आप ले लें, माइक हसी ने चेन्नई के लिए जो परफॉर्म करा, दैट इज वन टू वॉच. आप शेन वॉटसन ले लें राजस्थान के लिए, चेन्नई के लिए उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म करा है. स्टीव स्मिथ, ये डेविड वार्नर, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं सारे के सारे कि ये शायद ब्रांड टैग इनको मैटर करता है, कितने में प्राइस टैग इन पे कितना लगा है वो मैटर जरूर करता है, पर कुछ अलग ही लेकर आते हैं. अब पैट कमिंस ऐसे हैं जो नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर भी हैं. आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी वो एक रेड बॉल की परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल में आबू धाबी कंडीशंस या यूएई कंडीशंस में रेप्लिकेट कर पाएंगे? ये तो पहली बात वेदांत आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलियंस का बोलबाला रहा है इंडियन T20 लीग में सो फार और बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है एवरीवन. ऑस्ट्रेलियंस का मेरे हिसाब से ये रहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता प्रेशर से, ऐसा लगता है जब खेलते हैं, और इंटेंसिटी उतनी ही रहती है. चाहे आप स्टीव स्मिथ देखें, स्पेशली डेविड वार्नर्स एनर्जी ऑन फील्ड इज एग्जेम्पलरी फॉर एवरी क्रिकेटर आउट देयर. तो पैट कमिंस देखिए फास्ट बॉलर हैं और यूएई कंडीशंस में जहां पे हमने देखा है कितने पसीने आ रहे हैं प्लेयर्स को, और राइट. थोड़ा टफ. इवन इंडियन प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग वेदांत. इफ इंडियन प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग इन दिस हीट, तो ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में तो आप सोच ही लें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, साउथ अफ्रीका के हों, स्पेशली इंग्लैंड के जिन्हें ठंड में खेलने की आदत है, उनकी तो मेरे हिसाब से उनके उनके लिए दिक्कत होने वाली है इस बार थोड़ी. बट डेफिनेटली जो कंडीशंस यहाँ पे होंगी, कोप अप करना फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. बट प्रिपरेशन में जाते हुए आई थिंक ये दिमाग में रखा होगा कि यूए की कंडीशंस कैसी होंगी, उसी हिसाब से फिटनेस प्रिपरेशंस भी हो रही होंगी. बट यू कैन एक्सपेक्ट पैट कमिंस टू कम एंड डिलीवर हियर. जो प्राइस टैग लगा है इन पे इस बार, मुझे लग रहा है उसको जस्टिफाई कर देंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से. One more question on your way. I think a lot of people are already asking that how difficult it has been for the international players to not play in front of the crowd. Yeah, all the international players are used to playing in front of the crowds. But जिस हिसाब से वेदांत इंटेंसिटी दिख रही है सबकी, मुझे नहीं लग रहा कि कम हुई है उनकी परफॉर्मेंस में या कोई अंतर आया है. But if you remember Virat Kohli after winning the game, he against Punjab, he said that it was a little different to what it was before. जी पहली बार खेलना बिना क्राउड के,
वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स, स्पेशली इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स, दे आर यूज्ड टू हैविंग 50-60,000 इवन एटलीस्ट 40,000 प्लेयर्स इन द ग्राउंड। और आजकल आप देखें क्रिकेट का क्रेज इतना है वेदांत, ऑस्ट्रेलियंस अगर आप देखें एमसीजी में 80, 85, 90 हज़ार लोग देख रहे होते हैं, एंड फ्रॉम दैट it drops to zero. No one Right. is watching, only your team owners and all the support staff are watching, except that no one is watching. डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई थिंक एक दो मैच लगेंगे कोप अप करने में, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। Just 1 minute to toss. I think Rohit Sharma and Dinesh Karthik are in the middle, just waiting for that coin to go up. Final take. कौन जीतेगा टॉस? कौन जीतेगा टॉस? वेदांत, मुझे लग रहा है आज मुंबई जीत के गेंदबाजी करने वाली है। मुंबई जीत के गेंदबाजी करने वाली है। हो भी सकता है अब सही हो जाए, क्योंकि दोनों में अगर कंपेयर करें तो शायद रोहित शर्मा का लक थोड़ा सा ज्यादा चलता है टॉस के अंदर। Just seconds away from the toss, and I think it should be one to watch. Atul Paji will also be joining us in few moments, so be with us because a lot is on its way. We'll also be discussing who will be the top players, who will be the top picks, how is the pitch look like, and what is the playing 11, of course, and who are the top performers, and the best one, Atul Paji's take on which team has a better chance to win. डेफिनेटली वेदांत, एक्चुअली हम जब टॉस की बात कर ही रहे हैं, टॉस को कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि टॉस तो हो जाएगा, कोई भी बल्लेबाजी करे, कोई भी गेंदबाजी करे, पर टॉस के पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है। पहले डिस्कस करके आते हैं कि जीतेंगे क्या करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वेदांत, बिकॉज द टीम विनिंग द टॉस will want to bowl first in these conditions, definitely. So a lot riding on the toss currently. Yeah, absolutely. You are absolutely right. There's no doubt about it. But आप हार चुके हैं टॉस, आप हार चुके हैं टॉस, और ये आपके लिए थोड़ा अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही मेरे से 3 पीछे चल रहे हैं। 4-1 चल रहा है हमारा। 4 मैं जीत चुका हूँ पहले के मैचेस भी, और कोई आप बात एक ही नहीं, जीत। I don't mind losing to you. It's completely fine. All right, so just a quick update to everyone who is watching. Kolkata has won the toss, and as Yuvraj said, they have opted to bowl first. ये आपने बिल्कुल सही कहा युवराज, एक ट्रेंड बनते जा रहा है, और ट्रेंड यही है कि जीतो टॉस, बॉलिंग करो, जितना कम पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो करो, और उसको चेस करो। क्या लगता है यही चीज, यही पैटर्न आने वाले टाइम में भी होने वाला है टूर्नामेंट के अंदर, या फिर जब पिच खराब होगा तो शायद बैटिंग पहले होगी फिर? वेदांत, मुझे लगता है शारजा में कुछ और ट्रेंड होने वाला है। शारजा में मुझे लगता है टीम बैट करना चाहेगी, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, राजस्थान बैटेड फर्स्ट, पुट 216 ऑन द बोर्ड, एंड चेन्नई डिडंट स्ट्रगल पर से, but still they failed to chase it, and 16 run margin in a T20 game is a lot. So शारजा में थोड़ा पलटवार देख सकते हैं हम इस ट्रेंड का। But even in Sharjah, Chennai opted to bowl. It wasn't Rajasthan who opted to bat. So मतलब अभी भी ट्रेंड वही चल रहा है कि टॉस जीतो, बॉलिंग करो, बॉलिंग करने के बाद रिस्ट्रिक्ट करो और उसको फिर चेज करो। But after observing that game, Vedant, other teams would like to also ponder upon batting first on that ground. Because pitch अच्छी है वहाँ. Pitch was playing beautifully. As we saw, it was coming onto the bat from the spinners, from the pacers. तो definitely शारजा में कुछ अलग दिखने को मिल सकता है. Perfect. I think it's now time for me to leave, and Atul Paji will be joining us in few moments. Over to you, Yuvraj. Thank you, Vedant. Atul Paji will join us shortly. He's just here with us. Yes, he's just going to join us shortly. I'll give you an update, everyone watching. Kolkata has won the toss and they've elected to field first. And apart from that, Mumbai are going in with the same 11. So another big news. Mumbai are going in with the same 11, everyone. So Kolkata winning the toss, choosing to bowl first.
कैसा रहा आपका शो? क्या क्या प्लानिंग है, क्या खबर है मैच के बारे में? क्योंकि मैच में बैक इन अबू धाबी टुडे है। जी सब जी, वी आर बैक टू अबू धाबी और ग्राउंड के डायमेंशंस काफी चेंज होंगे आज अतुल पाजी, जैसा आप बताते हैं हमेशा। शारजा में तो देखिए काफी छोटा ग्राउंड था, वी सॉ अ लॉट ऑफ सिक्सेस। यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी लंबी हैं और साइड में कोई ब्लॉकेड नहीं है विंड के लिए। देखिए कोलकाता हैज वन द टॉस एंड देयर बॉलिंग फर्स्ट। अनदर बिग न्यूज इज मुंबई आर गोइंग इन विद द सेम 11। तो सबसे पहले अतुल पाजी आपसे पूछना चाहूंगा कल के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है और आज के टॉस के बारे में क्या ख्याल है? देखिए टॉस तो चलो इट्स लक गेम, बट पैटर्न सही है कि पहले टीमें चाह रही हैं कि भाई फील्डिंग कर लें और जो टोटल हो उसको चेस करें। कल चेन्नई सुपर किंग ने भी ऐसा ही किया, पर जो जो मास्टर नॉक खेली सैमसन ने और बाद में जोफ्रा आर्चर ने जो कमाल कर दिया, यू कांट इंडेमनीफाई और प्रिवेंट अगेंस्ट दिस। इसीलिए T20 का मजा है कि कोई ना कोई खिलाड़ी आके पूरा गेम का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर जाता है। मुझे लग रहा था इस समय जब 11 ओवर में 132 रन थे, कल कम से कम 230-35 रन बनने चाहिए थे क्योंकि विकेट हाथ में थी। उसके बाद बहुत बढ़िया काम किया चेन्नई सुपर किंग ने और बोनस उनका आया। उन्होंने रोका 192 पे लास्ट ओवर शुरू हुआ और कहाँ जाके खत्म हुआ देखिए। तो ब्रेन फेड हो जाता कई बार, पर उस मैदान पे वो भी पॉसिबल था। मुझे लगता है 215 का स्कोर जो था बनना चाहिए था और ऐसा लग रहा था बन जाएगा। पर क्या होता है जब आप 10-12 रन की चेस कर रहे होते हैं ना, तो वो लगातार सस्टेन करने में विकेट जाते हैं और कहीं आपके 1-2 विकेट ज्यादा चले गए लास्ट कॉम्बिनेशन में तो फिर गड़बड़ हो जाती है। वही देखा हमने। फिलहाल आज फिर से वही मैदान है। अब 3 अलग अलग तरह की पिचेस हमें देखने को मिली हैं। आप देखिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थोड़ा सा स्पॉन्जी बाउंस है, शायद वो मिट्टी थी उनकी, उन्होंने कहा कि इतना लंबा टूर्नामेंट है तो थोड़ी स्पॉन्जी घास छोड़ दी। उसके लिए भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बल्लेबाजों को। फिर भी हमने 150-160 का स्कोर वहां देख रहे हैं हम। अबू धाबी में मुझे लगता है स्कोर एवरेज बढ़ेंगे। पहला गेम था, थोड़ी दोनों टीमें पहले जब खेले थे तो दे वर ट्राइंग टू सस आउट द पिच एंड दे नोबडी वांटेड टू टेक द इनिशियल चार्ज। तो क्योंकि बाद में टूर्नामेंट में देखेंगे ज्यादा टीमें एग्रेसिव हो जाती हैं। अभी शायद थोड़ा देख रहे थे आज के मैच, शायद डिफरेंट अप्रोच आए टीम की क्योंकि उनको पता लग गया है कि ये मैदान ठीक है, अंदाजा लग गया है विकेट कैसा है। और पहले बल्लेबाजी करने वाले को टेंशन ये है कि उसको समझ नहीं आता टारगेट कितना दूं। तो आप पहले से ही मेंटालिटी बना के आते हैं, ड्रेसिंग रूम में बात होती है कि चलो आज बैटिंग करेंगे, ऐसा ऐसा सोचेंगे कि हम एक 200 का पीछा कर रहे हैं। तो 200 नहीं भी होंगे तो 180 तो हो जाएंगे एंड 180 इज फाइटिंग टोटल। पर कई बार क्या होता है कि बॉल स्विंग हो रहा होता है, एक आधा विकेट चले जाता है। अगर आप फिर भी 200 के माइंड से चलेंगे तो फिर आप 130 पे आउट हो जाएंगे। तो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग according to the stage of the game. So I think good toss for Kolkata Knight Riders. I'm looking forward to see Pat Cummins in the show today. अतुल पाजी यहाँ पे कोलकाता की भी प्लेइंग 11 आ चुकी है। आपको थोड़ा सा बता दूं क्या है इनकी। सुनील नारायण और शुभमन गिल ओपनिंग में स्लॉटेड हैं जैसा एक्सपेक्टेड था। उसके बाद है नीतीश राणा और उसके बाद है ओवेन मॉर्गन, आंद्रे रसल, ऑफ कोर्स देन द कैप्टन दिनेश कार्तिक। निखिल नायक है डाउन दी ऑर्डर जो स्लॉटेड है। बॉलिंग में मेरे हिसाब से यही एक्सपेक्टेड था, पैट कमिंस और कुलदीप यादव हैं। इसके अलावा जो 2 और फास्ट बॉलर्स हैं अतुल पाजी, संदीप वॉरियर और शिवम मावी। तो ये आपको मैंने प्लेइंग 11 बताई है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बताएं जरा। देखिए जबरदस्त टीम है। पैट कमिंस, ओवेन मॉर्गन आपकी टीम में हो, दुनिया के बेस्ट करंट फॉर्मेट्स में वनडे के बेस्ट बॉलर्स हैं दोनों। और आंद्रे रसल तो मैं कहता हूँ मैजिकल प्लेयर है। और सुनील नारायण इसी लीग के एक स्पेशलिस्ट बन चुके हैं क्योंकि जो मिस्ट्री थी उनकी वो खत्म हो चुकी है, पर उन्होंने अपनी डायमेंशन जो बैटिंग से ऐड कर दी है वो बड़ा फायदा होता है। 2-3 मैच पिछली बार बैटिंग से जिता दिए। हालांकि गेंदबाजी में जब से उनका हाथ सीधा करवाया है तब से वो वैसा मिस्ट्री स्पिनर नहीं रहा। पर उसने क्योंकि उनकी टीम को इतना भरोसा था कि उनको ओपनिंग स्लॉट में यूज करके उन्होंने अपनी टीम की डेप्थ नीचे कर ली बैटिंग की और एक बोनस मिल गया उनको। तो कोलकाता नाइट राइडर्स इज द टीम फॉर मी टू वॉच आउट। बहुत बढ़िया टीम है। किस तरह से 4 ओवरसीज प्लेयर्स करेंगे, नायक के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट संदीप वॉरियर इज बीन इन द कॉल फॉर इंडियन टीम, बीच बीच में टच करते रहे हैं इंडियन स्क्वाड को। और बाकी गेंदबाज कुलदीप यादव इंडिया का टॉप गेंदबाज है। अभी भी मिस्ट्री उसकी, अभी भी मुझे लगता नहीं कि कोई भी बल्लेबाज उसकी गुगली समझ पा रहा है। तो वो कितना फायदा होगा और ये मैदान उसे सूट करेगा। कहीं कुलदीप यादव जैसे कल पीयूष चावला शारजा में फंस गए थे तो वो हाल हो सकता है स्पिनर का, क्योंकि मिस हिट भी बाहर चले जाते हैं। तो शायद ये थोड़ी लग्जरी यहाँ मिलेगी उन्हें। पर यहाँ पे जो ग्राउंड के डायमेंशंस जैसे मैंने पहले कहा था अतुल बाजी, देयर आर लॉट बिगर देन शारजा। शारजा में अगर आप देखें मैक्सिमम बाउंड्री 55-60 मीटर से ऊपर जा नहीं रही थी। यहाँ पे
बाउंड्री इज 77 मीटर्स। सो स्पिनर्स के लिए एक एडवांटेज ये हो सकता है कि बाउंड्री पे कैच पकड़वाने का चांस यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मुंबई इज गोइंग इन विद द सेम 11 अतुल पाजी, तो क्या आपको कोई चेंज एक्सपेक्टेड था या सेम 11 ही रहनी चाहिए थी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि एक हार या दो हार के बाद आपको टीम बदलनी चाहिए अनलेस कोई इंजरी इश्यूज हो। आपने एक पैटर्न सेट किया है, आप इतनी जल्दी अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे तो फिर यू विल कम आउट एज कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपने एक सेट के हम इस बैलेंस से इससे खेलेंगे। अगर आप उसको उस फॉर्मेट को आपको 2-3 मैच देने होते हैं बिफोर यू चेंज योर स्ट्रेटेजी। ये गलती की थी दिल्ली कैपिटल्स ने, जब दिल्ली की टीम थी पहले, हर मैच के हार के बाद टीम बदल देते थे, चलो ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हो, तो यार वो यार ना यहाँ के रहे ना वहां के। तो ऐसी मैच्योरिटी मुझे लगता है, इमेच्योरिटी जो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस नहीं दिखाएंगे। सो दे हैव डिसाइडेड विद हाउ टू अप्रोच द टूर्नामेंट इनिशियल पार्ट एंड दे विल गिव इट अ फुल चांस। सो इवन इफ समबडी फेल्स फॉर 2-3 गेम्स ही विल बी परसिस्टेंट विद, आई थिंक दे कैन चेंज अराउंड और टिंकर अराउंड विद द बैटिंग ऑर्डर्स लिटिल बिट, पर टीम कॉम्बिनेशन आपको नहीं बदलना चाहिए। और आपने सही कहा, मैदान की डायमेंशंस के बारे में आपको बता दूं, आप देखिए 60-65 से 75-80 की जब फर्क पड़ जाए तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए 10 यार्ड 10 मीटर, तो आप देखें कितनी कैचेस हाथ से लगते लगते पीछे गिरती है। कई तो छक्के होते हैं जो बिल्कुल ही पार स्टैंड में जाते हैं, उनकी तो बात ही भूल जाए आप। बट मोस्टली अगर देखें आप, व्हेन बॉल इज मिस हिट तो कितने क्लोज कॉल्स रहते हैं, तो वो क्लोज कॉल्स कैचेस में बदल दिए जाएंगे। तो स्पिनर्स जो होता है उसको यही 10 मीटर की ही लेवरेज चाहिए होती है, 10 मीटर की ही उसे बफर चाहिए होता है। तो वो उसकी गेंदबाजी में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, वो खुल के थोड़ा फ्लाइट कर सकता है, वो टर्न कराने की कोशिश करेगा। जब आपको पता है कि बाउंड्री छोटी है तो वो तेज करेगा, तो उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी, वहां मार पड़ने के चांस। और ये भी बता दूं आपको मैं कि ये टूर्नामेंट में पहले माना जा रहा था कि किफायती गेंदबाज लेके आओ कि बच के निकल जाएं, अंडर आर्म डाल दें, बीच में डाल दें, फंसा के 4 ओवर 20 रन के डाल दें। आप अगर 4 ओवर 20 रन के डालने जाओगे ना तो आप 4 ओवर 40 खाओगे। आपकी मेंटालिटी गेंदबाज की होनी चाहिए कि मैंने विकेट लेना है, विकेट लेने के चक्कर में रन पड़ जाए आपको कोई बात नहीं, अगर रन पड़ भी गया और विकेट आ गया तो वो बेटर है बनिस्बत आपके रन बचाने के। एक आधा बॉलर जो है जिसके पास क्लास नहीं है विकेट लेने की, उसको यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली सभी टीम्स को पता लग गया कि हमने अब ऐसे बॉलर के लाने हैं जो कि विकेट लेके दे सकते हैं, बिकॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ स्टॉपिंग रन्स इन एनी फॉर्मेट ऑफ द मैच इज टू टेक विकेट्स। डेफिनेटली, वेदर इट्स टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई और T20, विकेट लेना मतलब रन रोकना। और ये इसका एक बहुत सही एग्जाम्पल जो हमने देखा था, युजवेंद्र चहल ने विकेट ली बीच में आके, जॉनी बेस्टो को निकाला, उसके बाद तो लाइन सी लग गई, विजय शंकर गए, उसके बाद अब जो भी बल्लेबाज आ रहा था उनको चहल ने निकाल दिया। सो वहां पे ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। जॉनी बेस्टो अगर अंत तक टिक जाते तो 3 ओवर में 40 रन भी बड़ी बात नहीं है, वहां पे तो 4 में 40 चाहिए थे। तो डेफिनेटली विकेट्स वाली बात तो बिल्कुल सही है। कोलकाता के मिडिल ऑर्डर में अतुल पाजी, ऑयन मॉर्गन और नीतीश राणा स्लॉटेड हैं। क्या लगता है इनमें से कौन ऊपर आएगा, कौन तीसरे नंबर पे आएगा और कौन चौथे पे? देखिए, मुझे लगता है कि अब देखो जब ऑक्शन हुई थी ना तो सभी टीम्स ने टीमें बनाई थी अपने होम ग्राउंड की कंडीशंस देखते हुए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसको। अब क्या हुआ कि इमीडिएटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई है। अब आपके खिलाड़ियों को जो आपने टीम बनाई थी, दे वर स्पेशलिस्ट ऑन दोस काइंड ऑफ पिचेस। नीतीश राणा इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ ईडन गार्डन्स immediately, you know, और Owen Morgan was a specialist for Eden Garden, जब बॉल थोड़ा सा सीम करके आएगा, थोड़ा आता है, you know, यहाँ पे लो और स्लो पिचेस पे आपको गेम बदलनी पड़ती है। तो कई बार आपके जो टीम कॉम्बिनेशन आपने टीम खरीदी थी, जो जो प्लेयर्स खरीदे थे स्पेशलिस्ट, वो उल्टे पड़ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के साथ मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, पर कल तो शायद जीत गए, पर उनकी टीम के कॉम्बिनेशन देखें तो दे वर सूटेड फॉर प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड्स इन राजस्थान। तो ये एक पॉइंट है। पर आप देखिए, आपके मैं डोमेस्टिक प्लेयर से तो थोड़ी कम उम्मीद करता हूं कि वो इतनी कंडीशंस को एकदम से एडजस्ट कर लें, पर इंटरनेशनल प्लेयर से तो मेरी उम्मीद है कि भाई आप पेशेवर खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में खेलते हैं, जैसी पिच है आपको अपनी गेम को ऑल्टर करके मैच जिताना है, और ऐसा ही करना होगा ऑयन मॉर्गन को। हालांकि अभी स्विंगिंग और सीमिंग और बाउंसी पिचेस पे सीरीज खेल के आ रहे हैं, इमीडिएटली आपको उतार दिया जाए स्लो और लो पे तो दिक्कत तो आने वाली है। पर यू नो दैट्स व्हाई दे आर टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दे मस्ट हैव दिस क्वालिटी टू एडजस्ट। और नीतीश राणा को मैंने बचपन से देखा है, मैं दिल्ली का चेयरमैन भी हूँ, सिलेक्टर भी हूँ, और नीतीश ने कप्तानी भी की है, तो बहुत इंटरेक्ट किया है। बहुत मेहनती लड़का है, और सिर्फ बैटिंग से नहीं, आई थिंक उनको उसको यूज करा जाता है गेंदबाजी में, स्विंग भी कराता है, सीम भी कराता है, स्पिन भी कराता है, तो बड़ा वर्सेटाइल क्रिकेटर है। तो मुझे लगता है कि अब इतने साल हो गए उसको खेलते हुए, अब उसको एक सीनियर प्लेयर का एक रोल प्ले करना चाहिए। ही इज नॉट अ यंगस्टर एनीमोर। नीतीश राणा ने नाम कमाया था मुंबई इंडियंस के लिए खेल के,
मुंबई इंडियंस से वो लगातार खिलाया गया और वहां से फिर खरीदा गया कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ को, पर अब आया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब उसको अपने जो जो नाम है उसका, जो जो वैल्यू उन्होंने सोची है उसकी, उसके अनुरूप नंबर 3 इज द बेस्ट प्लेस टू बैट इन T20 फॉर्मेट, एंड यू गॉट ऑयन मॉर्गन टू फॉलो यू, सो दिस इज द काइंड ऑफ लग्जरी का बहुतों को नहीं मिलती है, तो आप दिल खोल के खेलें। जी बिल्कुल, और यहाँ पे शायद जब अतुल पाजी कंडीशंस को अडेप्ट करने की बात आती है, देयर कम्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगे वो जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे डेफिनेटली। इसके अलावा हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोलकाता के हमें पेस डिपार्टमेंट में आज कमलेश नागरकोटी देखने को मिलेंगे, लेकिन ही स्टिल सिटिंग आउट एंड दे हैव चोजन शिवम मावी ओवर हिम। तो अगर आप इन प्लेयर्स के बारे में अगर अतुल पाजी जानकारी रखते हैं तो क्या रीजन हो सकता है नागरकोटी को बाहर रखने का? देखिए, दोनों ही बड़े प्रॉमिसिंग बेस बॉलर्स हैं। अंडर 19 में नाम कमाया था 2 साल पहले, हमने देखा था, और इमीडिएटली आईपीएल में इंडक्ट हुए, खेले भी, अच्छा भी किया। मावी की हमने परफॉर्मेंस देखी, एक्शंस बहुत बढ़िया हैं दोनों के, तो दोनों आर द फ्यूचर अपकमिंग स्टार्स ऑफ फास्ट बॉलिंग इन इंडिया। इंजरीज दोनों को रही हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है रिहैबिलिटेशन। ऑफ सीजन में इस बार ऑफ सीजन भी थोड़ा सा वेस्ट गया हमारा, क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन था। तो जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनके पास फैसिलिटीज हैं, टीम है उनकी, उनका जो कोर ग्रुप है, उन्होंने, जो यंग लड़के हैं जो कि एनसीए में रहते थे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वहां पे पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है, शायद अपने घरों में बैठे हुए वो ना कर पाए, जो इंजरीज की रिहैबिलिटेशन हो रही थी वो उतनी बढ़िया ना हो पाए। तो आई थिंक दीज आर द इनिशियल मैचेस वी हैव टू वॉच, कि क्या भाई इंजरी, कई बार क्या होता है कि इंजरी के बाद वापस मेरे साथ भी हुआ था, मैंने अपनी रिप तोड़ ली थी, और उसके बाद मैंने छुपाई इंजरी अपनी, क्योंकि उस समय बड़ी इनसिक्योरिटी थी इंडियन टीम में रहने के लिए, तो और ऐसी कोई स्पेशलिस्ट हेल्प नहीं थी, आप अपने शहर में जाके अपने फिजियो से ट्रीटमेंट कराते, तो कोई बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं था तब। तो हमने जो उस समय समझ आया कि पहलवान के पास चले गए, कभी डॉक्टर के पास चले गए, उसने अल्ट्रासाउंड कर दिया, ऐसे नहीं होता। आजकल बड़ी स्पेशलिस्ट हेल्प चाहिए, हर एक पार्ट जो इंजरी होती है, फास्ट बॉलर की अलग इंजरी रहती है, बैट्समैन की अलग इंजरी रहती है, हर एक इंजरी का एक अलग स्पेशलिस्ट है, उसकी इंजरी की ट्रीटमेंट और उसकी मॉनिटरिंग, उसकी रिहैब, एंड व्हेन यू कम बैक टू द गेम, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एफर्ट यू हैव टू पुट। सो बड़ा एक साइंटिफिक कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, ऐसा टेम्पलेट बन गया है। तो ये शायद कोविड के कारण जो इंजरी दोनों को रही है खिलाड़ियों को, वो मैं देखना चाहूंगा कि किस तरह से उनका प्रोग्रेस है। कई बार एक्साइटेड होकर, आप में एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आप आते ही जोर लगाते हैं कि मैं दोबारा से वो अपना इंपैक्ट दिखाऊं, उसमें दोबारा इंजरी होने का चांस है। तो कोचेस जो है ये बात का ख्याल रखना होगा। जी बिल्कुल, यही बात ना वेदांत से कर रहा था पहले लाइव में, कि हर डिपार्टमेंट में अतुल पाजी आजकल स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो एनालिटिक्स हो, चाहे वो वीडियो डिपार्टमेंट हो, फिजियो डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हर चीज़ में इतना एनालिसिस है आजकल कि इतनी सोच के साथ प्लेयर्स उतरते हैं और होमवर्क के साथ उतरते हैं, एक एडवांटेज हो जाता है वो। अतुल पाजी, आज का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन टुडेज गेम? देखिए, आई थिंक ऑयन मॉर्गन एंड पैट कमिंस फॉर मी फ्रॉम ये तो, और कारण पोलार्ड, मुझे लगता है कि दिस गेम इज अ गेम, बिकॉज आज बात भी की है, रोहित शर्मा को भी शुरू में मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस खराब ना हो जाए। मुझे लगता नहीं कि इतना स्टार प्लेयर है कुछ फर्क पड़ता है, पर बड़े प्लेयर को रहता है कि मेरी रेपुटेशन भी बड़ी चीज है, तो ऐसे में कई बार शॉट मारते आप आउट हो जाते हैं, शॉट सिलेक्शन गलत हो जाती है, तो वो प्रेशर रहता है। तो मुंबई इंडियंस के लिए बेहतर ये रहेगा कि रोहित शर्मा परफॉर्म करें इस मैच में, क्योंकि दैट विल सेट द टोन, you know. So these are the 3-4 players that I would love to watch. And he's also the captain, and you'd expect him to lead from the front, whether Yeah, that lead is... from the front, देखिए lead from the front क्या होता है? Lead from the front होता है कि कप्तान भी परफॉर्म करे, जी ठीक है जी उसका, क्योंकि हाँ, ये नहीं है कि आपको कोई, आपकी कोई जो प्लेस है वो डाउट में नहीं है, यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, तो क्या होता है जब कप्तान कहता है कि मैं आई एम द लीडर और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड एवरीबडी शुड हैव टू वॉक द टॉक नाउ। अब जब आप खुद परफॉर्म ना कर रहे हो तो कैसे डंडा देंगे दूसरी टीम वालों को? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही शायद देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ भी जो कप्तान है, बोथ हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कप्तान का। अतुल पाजी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू अगेन, गेटिंग सच ग्रेट इनसाइट्स अबाउट द गेम, ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग ओके, अस। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।